Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I know campuses start हो गए हैं and I am here today to tell you how I prepared for my interview and मैं आपको वो सारे questions और topics बताऊंगा जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए for audit and assurance vacancies wherever you have been shortlisted to especially for big fours and mediocre CA firms. So this video is going to be based on what I have experienced in my interview and also what were the research that I did before appearing in an interview. So without any delay, let's continue to our video. So in my opinion, what is audit opinion is the most important question for any audit interview. So you have to go through all the respective essays, all the respective audit reports, type of opinion, how to modify, when to modify, and what is unqualified or qualified reports. You have to know all of this, all right? That pervasive nature and everything, whenever it becomes a qualified report, you have to know that. And the next thing is materiality, because you must have seen in that audit opinion thing that you have to mention it whether a particular financial statement are materially misstated, whether due to fraud and all that. So आपको पता कैसे चलेगा materially misstated है या नहीं? You have to calculate materiality, right? So that is what makes materiality an important topic. So you have to know what is materiality, and you also have to know what is performance materiality. All right, so performance materiality is basically an amount fixed lower to the materiality level set for the financial statement level. बस यही चेक करना रहता है उसमें कि whether uncorrected misstatements are in aggregate crossing that materiality level for financial statement as a whole or not. तो आप वो उसमें चेक कर लेना क्या उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, मगअप कर लेना, अंडरस्टैंडिंग भी रखना, क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो जो भी आप बोल रहे हो उसके रिफ्लेक्शन में आके. नेक्स्ट थिंग होता है व्हाट इज असर्शन. यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ असर्शन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम. यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब दैट पर्टिकुलर टॉपिक लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स ऑडिट और FSLI ऑडिट. तो आपको कोई भी वीडियो मिलता है 10-15-20 मिनट का, रिवीजन वाले वीडियोज उठाना, कोई एकदम डेप्थ वाले टॉपिक मत उठाना, और आपको उसमें मिल जाएगा. बहुत ईजी होता है यार, कुछ आप मतलब अपने मन से भी बोल सकते हो, बट यू विल हैव टू नो व्हाट आर FSLIs एंड व्हाट आर बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी देयर. अगर आपने 10-15 आइटम भी देख लेना तो दैट वुड बी एनफ. ऑडिट टेक्निक्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के टाइप्स वगैरह में किसी में पूछ लिया तो यू हैव टू नो दैट ऑल्सो. तो अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने बताए दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. यू हैव टू नो दैट एंड यू हैव टू नो द मीनिंग एज वेल. Not just mugging up will going to serve you well. All right, you have to know the depth of the topic. You are a chartered accountant, you of course know that, but just revise those things. All right, so आप अपने notes वगैरह बना लेना और उसके questions के answers की practice करते रहना in your mind. Whenever you are going to sleep, whenever you are taking a walk, आपको इतनी fluency रखनी पड़ेगी अपने जवाबों में कि मतलब ऐसा ना लगे कि बिल्कुल मगअप किया हुआ है, इसको अंडरस्टैंडिंग है नहीं कुछ, राइट? बाकी टॉपिक्स हो जाते हैं आपके ऑडिट रिस्क क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं उसके, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है. इन सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ गो थ्रू योर ओल्ड बुक्स and revise those from your notes and make your own smaller notes so that you can revise it quickly. और एक और चीज़, आप अगर आपके अटेम्प्ट के बाद कुछ कारों में चेंजेस आ रहे हैं या लेटेस्ट चेंजेस आए हैं आपके इंटरव्यू के जस्ट पहले, तो आपको वो चीज़ें सर्च कर लेना, रिसर्च मार लेना, कंपनीज एक्ट का भी थोड़ा बहुत देख लेना, कारों वगैरह जैसी चीज़ों का ज़रूर देख लेना. शेड्यूल 3 में चेंजेस आ जाते हैं अक्सर छोटे मोटे, तो वो आपको पता होने चाहिए कि क्या चेंजेस हैं. दे कैन ईजिली आस्क यू एनी टाइम. और एक एडिशनल चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंडियाज़ की प्रिपरेशन कर लेना. जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गया आपका, राइट? एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड देन योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज़ देयर, देन इम्पेयरमेंट्स ऑफ एसेट इज़ देयर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट? तो ये 4-5 इंडेसेस आपको पता होने ज़रूरी हैं. और इससे ज़्यादा भी अगर आप कुछ रिवाइज कर पाओ इन सब में एकदम कमांड हासिल करके, तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज इतना बेसिक तो आपको करना ही पड़ेगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़. कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. तो यार वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऑल द वेरी बेस्ट.